Good evening, dear students. Perhaps all of you are fine. So, we are continuously discussing the series of NCERT classes, that is 6, 7, 8, 9, and 10. Continuously in this pandemic situation, today we will going to discuss the NCERT class 7 science chapter 15. आज हम NCERT साइंस का चैप्टर 15 का जो लाइट चैप्टर है, लाइट चैप्टर बारे में टोटल डिस्कशन करेंगे. वी विल डिस्कस एलाबोरेटली विथ concept, concrete idea, and with some diagrams, some assumption, and with some comparisons. We will discuss all things elaborately. हम सब चीज़ लाइट बारे में जितना भी चीज़ है सब चीज़ उदाहरण तौर पे और एक्सप्लेनेशन का साथ विस्तार करके सब चीज़ आपको जितना हो सकता है हम आपको समझाएंगे और आप समझने के लिए कोशिश करिए. सो इफ़ यू हैव नॉट सब्सक्राइब टू आवर चैनल, अगर आप हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, तो नीचे दिए गए by pressing the bell icon in the button, please subscribe the bell icon so that you can get the recent updates. अगर आप हर दिन ऐसा सब्जेक्ट मटेरियल पाना चाहते हैं, तगड़ा तगड़ा मटेरियल और कंक्रीट आइडिया लेना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू गेट कंक्रीट आइडिया, सो प्लीज सब्सक्राइब टू आवर bell icon in order to get recent notification and updates. So don't be late. Let's start. That is chapter 15 of class NCERT science, that is light. So before going to this chapter, I will give you some brief discussion. Students, all of you know light is a form of energy. Without light, so this is all about myself Maji sir. Please subscribe and comment. Today we will discuss chapter 7. So students, all of you know without light no one cannot see anything. So you can wonder, without light what the earth possible. अगर लाइट नहीं होते हम लोग खाना भी नहीं खा सकते. अगर खाना नहीं खाएंगे तो जिएंगे कैसे? सो इट विल बी वेरी डेंजरस इफ वी हैव facing scarcity of light. So all of you know sun is the ultimate source of energy. Before going to this concept, I will give some brief discussion regarding your light. So students, light can be understood as a form of energy like your heat energy, mechanical energy. There are so many different forms of energy: hydro water energy, mechanical energy, like that. Light is also a form of energy that produces the sensation of vision. That means it helps to see. Light helps us to see. How light help us to see? Suppose this is a object. When light falls on that object, then after reflection we can see in our eyes. पहले क्या करता है, लाइट कोई भी चीज ऊपर पड़ता है, उसका बाद रिफ्लेक्शन होने का बाद हम आंखों में देख सकते हैं. अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता है तो हम नहीं देख सकते हैं. अगर इफ द ऑब्जेक्ट इज लुमिनियस, अगर ऑब्जेक्ट के पास खुद का लाइट है तो हम डायरेक्टली उसको देख सकते हैं. सो वी डिस्कस, नोट डाउन दिस पॉइंट. लाइट कैन बी अंडरस्टूड एज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट प्रोड्यूसेस द सेंसेशन ऑफ विजन. दैट मीन्स लाइट एनर्जी का एक फॉर्म होता है जो हमको देखने के लिए मदद करता है. Second point, in daytime, light gives out, the sun falls different objects and the reflected from the objects enter to our eye and enables to view the object. मैंने आपको बता दिया ऑलरेडी, आई डिस्कस्ड यू. व्हेन लाइट फॉल्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट, सपोज इधर एक ऑब्जेक्ट है, इधर लाइट पड़ता है, रिफ्लेक्शन होने के बाद हम उसको आंखों में देख सकते हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट योर concept of light. So move to next portion. So objects are categorized into two types on the basis of sources of light. अगर ऑब्जेक्ट का पास लाइट है, खुद का लाइट है, that is known as your luminous light. That means own light. Object possessing own light, they are known as your luminous. ऑब्जेक्ट का पास खुद का लाइट है. The objects just like your sun and firefly, that is a insect. You might have seen that in the dark, that possess light, firefly. So these are the luminous object. If you look towards non-luminous object, that means object doesn't possess any light.
खुद का लाइट नहीं है, डजंट possess लाइट, इट गेट रिफ्लेक्टेड बाय अनदर सोर्स, खुद का लाइट नहीं है, ये क्या करता है, दूसरा का रिफ्लेक्शन की वजह से मदद करता है। फॉर एग्जाम्पल just like your moon and other things also. So this is concept perhaps clear. Move to the next concept. So what are the properties of light? Light का क्या क्या property है? First one is your rectilinear propagation. Rectilinear means straight line motion. In class 6 you have already learned rectilinear means straight. That means light travels along a straight line always. In the class 6 you have also verified this by taking two type of pipe. One is straight pipe, another one is your bent pipe. Remember this point. In a straight pipe you can able to see the flame of the candle. You might have seen the lighthouse that is able to, that helps to see the navigation, that also the uses the property of rectilinear propagation. And generally you can also if you light a torch you can also able to verify it. So light travels along a straight line, that means light एक सीधी तरफ से मूव करता है, सीधी लाइन की तरफ, वो बेंड कभी नहीं होता है, उसी को बोलते हैं रेक्टिलिनियर प्रोपागेशन। सेकेंड वन, इट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड यू, ये एक एनर्जी का फॉर्म है। तीसरा पॉइंट है व्हेन इट फॉल्स एनी ओपाक ऑब्जेक्ट, अगर लाइट कोई ओपाक ऑब्जेक्ट, ओपाक मीन्स थ्रू व्हिच लाइट कैन नॉट पास, उसका अंदर अगर हम लाइट दिखाएंगे तो पास नहीं कर पाता है, इसीलिए इट फॉर्म्स शैडो, क्या करता है, परछाई, जिसको बोलते हैं क्या, परछाई। परछाई क्या करता है, सामने दिखता है, साइड में दिखता है। So we discussed the property of light. What are the property of light we discussed? First one, just remember rectilinear propagation. Second one, form of energy. Third one, shadow formation. Next concept. So when light falls any smooth surface, smooth and polished surface, अगर light polished surface का ऊपर पड़ता है, just like your mirror and one water bodies, you might have seen the reflection image of the trees that is located on the pond, like that. In case of Panchatantra you might have listened how the foolish rabbit help to get food for the rabbit, sorry, for the lion. So reflection, it is the phenomena in which when light falls on any smooth and polished surface, अगर ऐसा कुछ मिरर है, मिरर का अंदर आप टर्च दिखाएंगे, ऐसे टर्च दिखाएंगे तो लाइट रे फिर वापस कर देता है, उसी को बोलते हैं रिफ्लेक्शन। सो देयर आर टू टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, वन इज योर रेगुलर रिफ्लेक्शन, अनदर इज योर इरेगुलर डिफ्यूज रिफ्लेक्शन और इरेगुलर रिफ्लेक्शन। अगर लाइट स्मूथ सरफेस ऊपर पड़ता है, स्मूथ सरफेस मीन्स जस्ट लाइक योर मिरर एंड पॉइंट सरफेस, ऐसा सरफेस का ऊपर पड़ता है तो ऐसे लाइट रिफ्लेक्शन होता है, उसको बोलते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन। अंडरस्टैंड? अगर इरेगुलर सरफेस ऊपर पड़ता है ऐसे तरफ का, वो लाइट रे जब पर गिरता है तो इधर उधर सब भागता है रिफ्लेक्शन होने का बाद, उसको बोलते हैं डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। सो रेगुलर रिफ्लेक्शन एंड डिफ्यूज रिफ्लेक्शन। परहैप्स दिस पॉइंट क्लियर। मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज characteristics of the image from a plane mirror. In your daily life you have seen the images while combing and other things also, you are seeing, you are looking at your plane mirror. So what type of image from the plane mirror? So first thing is your size of the image is the same size of the object. object का size जितना है उसी size का image ही बनेगा plane mirror का। अगर 5 मीटर का लकड़ी दिखाएंगे सामने तो 5 मीटर का ही इमेज बनेगा, 10 मीटर नहीं बनेगा। फर्स्ट वन, साइज ऑफ द इमेज इज साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। सेकंड पॉइंट, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर। अगर हम मिरर को इधर रखेंगे तो यहाँ से यहाँ 5 मीटर दूरी में हम खड़ा होंगे तो पीछे 5 मीटर दूरी में आपका इमेज बनेगा। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ द मिरर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ द इमेज बिहाइंड द मिरर। तीसरा पॉइंट, ए वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज फॉर्म। जो इमेज बनेगा, द इमेज विल बी वर्चुअल, दैट मीन्स इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, हम उसको टच नहीं कर पाएंगे। एंड इरेक्ट, सीधी बनेगा। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट पॉइंट इज द इमेज फॉर्म by a plane mirror is laterally inverted. That laterally inverted means if you show your left hand in front of plane mirror, then the mirror will show you right hand.
and vice versa. If you show your right hand, it will show left hand. So these points are perhaps clear. Note down these points, then move to the next concept. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, व्हाट आर द यूजेस ऑफ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर कहाँ कहाँ पे यूज होता है। पहला चीज है प्लेन मिरर घर की तरफ पे आप जितना चीज देखने के लिए कैसे आप दिख रहे हैं, हैंडसम दिख रहे हैं कि नहीं। प्लेन मिरर आर यूज एज लुकिंग ग्लास। सेकेंड पॉइंट, प्लेन मिरर आर यूज बाय ऑप्टिशियन। ऑप्टिशियन मीन्स टू मेंटेन द स्टैंडर्ड डिस्टेंस। अगर आपका आंखों खराब है तो आप आई डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको वो आई टेस्टिंग करने के लिए प्लेन मिरर का इस्तेमाल पहले करेगा। उसका सामने खड़ा करके ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इधर उधर करके दिखाएगा। नेक्स्ट वन इज यार, आप देखेंगे बड़ा बड़ा प्लेन मिरर को शॉप में खड़ा किया जाता है। प्लेन मिरर आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोवाइडिंग फॉल्स डायमेंशन। आपका डायमेंशन को इधर उधर दिखाएगा शॉप्स में। सामने दुकान का सामने मिरर खड़ा कर देता है, इसीलिए आपको इधर उधर दिखता है। अगर कोई सामान वगैरह दूर से कोई इधर उधर छुपा के ले जाता है तो उसमें पकड़ा जाता है। बट नाउअडेज दिस CCTV are very useful instead of these plane mirrors. So next one is your solar cooker. You might have seen in case of solar cooker, it is used to get the reflector of sunlight. And another in your kaleidoscope and reflecting periscope. In class 6 you have done how to prepare periscope. So these are the uses. So remember, first one is your looking glass. Next one is your optician. Third one is your shop. Fourth one is your solar cooker. Next one is your kaleidoscope or reflecting periscope. So these are the uses. Go to next point. That is so not only plane mirror, there are also two types of another mirror, that is known as your spherical mirror. Spherical mirror means just like your it is a part of sphere. Sphere का एक छोटा सा पोर्शन है, जस्ट लाइक यार ऐसा आ सकता है, ऐसे भी हो सकता है। सो इट इज कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर। स्फीयर का एक ये पार्ट है। दो तरीका से देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिरर, वन इज कॉनकेव, अनदर इज योर कॉन्वेक्स। वी विल डिस्कस एलाबोरेटली। सो if you look towards the type of mirror, first one is your concave mirror. Concave mirror, it is a spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards. बोला गया कि एक ऐसा एक मिरर है जिसमें इन व्हिच द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो रिफ्लेक्शन सरफेस है वो क्या है, अंदर की तरफ मुड़ा हुआ रहता है। जस्ट लाइक यार इफ यू टेक ए स्पून, अगर हम स्पून लेंगे ऐसे टाइप का, स्पून का अंदर वाला पोर्शन, कौन सा वाला पोर्शन, अंदर वाला पोर्शन आपको जैसे दिखाई देगा, दैट विल बिहेव एज ए कॉनकेव मिरर। अंदर वाला पोर्शन आपको कॉनकेव मिरर की तरफ दिखाएगा। दैट मीन्स रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज कर्व इनवर्ड्स, अंदर की तरफ कर्व है तो उसको बोलते कॉनकेव मिरर। अगर मिरर का रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड, बाहर की तरफ मुड़ा है, मिरर सॉरी स्पून को ले जाइए, स्पून को उल्टा कर दीजिए, दैट मीन्स पीछे की तरफ आप देखिए, जिस तरफ खाना खाते हैं उस तरफ नहीं, उल्टा तरफ देखिए, आपका इमेज अलग टाइप का दिखेगा। इस जैसे टाइप का दिखेगा उसी को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। सो convex mirror, it is a spherical mirror whose reflecting surface is curved outwards. जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है कन्वेक्स मिरर का वो आउटवर्ड, बाहर की तरफ निकालता है। सो दिस इज द रे डायग्राम फॉर कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। सो व्हाट टाइप ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में कैसा टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है। फर्स्ट वन इज इट कैन बी रियल और वर्चुअल। हम उसको पकड़ सकते हैं, नहीं भी पकड़ सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। आप किस तरफ खड़ा किए हैं उसी तरफ से, उसी हिसाब से इमेज बनता है। देन इट कैन बी इन्वर्टेड और इरेक्ट। ये इन्वर्टेड हो सकता है, उल्टा हो सकता है, सीधा भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है it have the same size that the object, a larger size that object और smaller size। अगर ये छोटा इमेज भी बना सकता है, बड़ा इमेज भी बना सकता है। डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को हम आप कितना दूरी में रखे हैं, कौन सा कितना दूरी में रखा है, उसी हिसाब से वो इमेज बनता है कॉनकेव मिरर का। नेक्स्ट हम देखेंगे कन्वेक्स मिरर में कैसा टाइप का इमेज बनता है। कन्वेक्स मिरर इट ऑलवेज वर्चुअल इमेज, ये कभी रियल इमेज नहीं बनता है। सी भी कन्वेक्स मिरर virtual image, that means it cannot be projected on screen. So next one is it always upright.
अपराइट मीन सीधा इमेज बनता है, सीधी, ये उल्टा नहीं होगा। नेक्स्ट वन, इट इज स्मॉलर साइज एज एन ऑब्जेक्ट, जितना भी ऑब्जेक्ट का साइज होगा उससे छोटा दिखेगा आपको। कौन सा इमेज, कौन सा मिरर, कन्वेक्स मिरर। सो कन्वेक्स मिरर ऑलवेज प्रोड्यूसेस व्हिच टाइप ऑफ इमेज, वर्चुअल, अपराइट दैट मीन स्ट्रेट, और स्मॉलर साइज, छोटा सा। नेक्स्ट पॉइंट मूव करते हैं। सो दिस इज फॉर योर इजी एक्सप्लेनेशन। रिफ्लेक्टर ऑफ द टॉर्च, टॉर्च का जो रिफ्लेक्टर होता है आप निकाल के देख सकते हैं। टॉर्च का ये वाला जो हिस्सा, ये कनकेव सरफेस है, ये आपको कनकेव मिरर की तरफ काम करेगा। और आपका जो मिरर होता है, गाड़ी का मिरर, व्हीकल का जितना भी मिरर रहता है वो छोटा छोटा बहुत, इसीलिए बहुत दूरी तक दिखाई देता है, उसी मिरर को बोलेंगे कॉन्वेक्स मिरर। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट, व्हाट आर द एप्लीकेशन, कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल होता है। पहला चीज़ है कॉन्केव मिरर, आपका सैटेलाइट डिशेस यूज कॉन्केव मिरर टू गैदर ऑल सिग्नल्स, इकट्ठा करने के लिए कॉन्केव मिरर को क्या करता है, वो इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट वन इज डेंटिस्ट, कॉन्केव मिरर को कोई पर्टिकुलर टूथ आपका अगर कीड़ा खा गया, सो इन ऑर्डर टू चेक द particular tooth decay, to detect the particular tooth, dentist also use concave mirror, इसीलिए छोटा चीज बड़ा दिखाई देगा, इसीलिए उसको आसान से पता होगा। नेक्स्ट चीज होता है आपका सेविंग मिरर, जब आप सेव होते हैं, सेविंग करते हैं, आपका ये बियर्ड सेविंग करता है, छिलाता है आपका बियर्ड वगैरह, उसी टाइम क्या करते हैं आप कनकेव मिरर इस्तेमाल करते हैं, ताकि आपको बड़ा दिखाई देगा और कहाँ से भी चोट ना लगे। नेक्स्ट वन इज योर हेडलाइट ऑफ द कार, कार का हेडलाइट में इस्तेमाल करता है, ताकि कनकेव मिरर ताकि वो ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है, इसीलिए आपको आसानी से आप कार ड्राइविंग कर सकते हैं, ज़्यादा देर तक स्प्रेड हो सकता है। और नेक्स्ट है टॉर्चेस ऑल्सो यूज कनकेव मिरर, कुछ कुछ टॉर्च में कनकेव मिरर का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट देखेंगे हम कन्वेक्स मिरर कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है। सो कन्वेक्स मिरर, एज ऑल ऑफ यू नो, इट प्रोड्यूसेस स्मॉल एंड इरेक्ट इमेज, छोटा सा और इमेज बनाता है, इसीलिए ये गाड़ी का पीछे वाला लाइट, पीछे वाला मिरर आपके, सॉरी, गाड़ी का जो मिरर रहता है, अब गाड़ी का मिरर को शो के लिए नहीं दिखाते, इसी इसको इस्तेमाल करता है ऑब्जेक्ट को दिखाई देने के लिए। सो द रियर व्यू इमेज, गाड़ी का जो मिरर रहता है उसी को, उसमें कौन सा इमेज, कौन सा मिरर इस्तेमाल होता है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर इज यूज इन केस ऑफ व्हीकल्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वाइडर व्यू, बहुत दूर तक दिखाई देगा, ताकि आपको एक्सीडेंट से थोड़ा बचा सकता है। नेक्स्ट वन है सिक्योरिटी मिरर नियर एटीएम, सिक्योरिटी मिरर नियर एटीएम का पास सिक्योरिटी जो रहता है वो सिक्योरिटी मिरर भी बोलते हैं, लेकिन उसमें बड़ा बड़ा मिरर रहता है, आजकल तो सीसीटीवी लग गया, पहले ऐसा होता था, इसीलिए वो क्या कर सकते हैं, बहुत दूर तक दिखा सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। सो दिस इज ऑल अबाउट योर मिरर। देन वी डिस्कस रिगार्डिंग योर लेंस। सो लेंस इज अ पार्ट ऑफ रिफ्लेक्टिंग मटेरियल लाइक ग्लास। लेंस एक क्या है, रिफ्लेक्टिंग मटेरियल है, ग्लास और प्लास्टिक से बना हुआ आता है, उसका दो तरफ ऐसे टाइप का हो सकता है, ये ऐसे टाइप का हो सकता है, नहीं तो ऐसे टाइप का हो सकते हैं। आप लेंस का नाम भी सुने होंगे, उसी बारे में टोटल डिस्कशन करेंगे। सो लेंस आर अनलाइक मिरर की तरफ ये नहीं है, थोड़ा सा अलग है। देयर आर टू टाइप ऑफ लेंस, वन इज कॉन्केव लेंस, अनदर वन इज योर कन्वेक्स लेंस। वी विल डिस्कस एलाबोरेटली। सो फर्स्ट वन इज योर टाइप ऑफ लेंस, वी विल डिस्कस कन्वेक्स लेंस। कन्वेक्स लेंस ऐसा होता है, ए कन्वेक्स लेंस इज कर्व आउटवर्ड्स, उसका जो कर्व है, कर्व कैसा है, आउटवर्ड्स, इसी डायग्राम में आप देख सकते हैं, उसका शेप कैसा है, इसी को क्या बोल देंगे, कन्वेक्स लेंस। उसका कन्वेक्स लेंस इज कर्व आउटवर्ड्स, आउटवर्ड की तरफ कर्व है, ऐसे टाइप का कर्व है। एंड थिकर इन द सेंटर, नैरो एट द डाउन एजेस, सेंटर में थिक है, सेंटर में ज़्यादा मोटाई है, और ये वाला सेंटर वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा में ज़्यादा मोटाई है, और साइडर में पतला है। सो देयरफॉर इट इज नोन एज योर कन्वर्जिंग लेंस। वो क्या करता है, इकट्ठा करता है, सब चीज को इकट्ठा करते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, उसी एक पॉइंट में सबको लेकर के मर्ज कर देते हैं। द लाइट रेज आफ्टर पासिंग थ्रू द कन्वेक्स लेंस गेट मर्ज विथ ए सिंगल पॉइंट, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज योर कन्वर्जिंग लेंस, इसीलिए उसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोला जाता है। अगर हम बात करेंगे on the other hand, convex lens is the reverse of the concave lens. That means the light ray after passing through the concave lens it get refracted, वो क्या करता है,
एक्सपैंड हो जाता है, इसीलिए उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, इसको डाइवर्जिंग लेंस भी इसको बोलते हैं। लिखा है द कॉन्केव लेंस इज कर्व इनवर्ड्स, उसका जो कर्व है इनवर्ड्स रहता है, ऐसे टाइप का रहता है। इट हैज वाइडर एजेस, एज ये साइड वाला हिस्सा वाइड रहता है और बीच वाला हिस्सा पतला रहता है। आप इसमें डायग्राम क्लियरली देख सकते हैं, रुकिए थोड़ा। और इसमें कन्वेक्स लेंस का ये इमेज है और ये कनकेव लेंस का आपका डायग्राम बताया गया है इसमें। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू कन्वेक्स लेंस सब लाइट को इकट्ठा मिला देते हैं, इसीलिए उसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वेक्स लेंस gathers all the rays and that meets in a single point, that is known as converging. On the other hand, concave lens is known as your diverging lens. नेक्स्ट वन ईयर, व्हाट टाइप ऑफ इमेज फॉर्म बाय कॉन्केव एंड कन्वेक्स, कैसा टाइप का इमेज बनाता है? कन्वेक्स लेंस आपका रियल और इन्वर्टेड इमेज बनाता है। द इमेज इज लार्ज एंड अपीयर्स क्लोज टू द लेंस, इमेज जो बनता है वो थोड़ा बड़ा होता है और लेंस का सामने जैसे दिखता है। रियल दैट मीन्स हम उसको स्क्रीन में प्रोजेक्ट कर सकते हैं। ऑन द अदर हैंड कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस वर्चुअल इमेज, इट कैन नॉट बी प्रोजेक्टेड ऑन स्क्रीन, इरेक्ट और स्मॉल एंड अपीयर्स फार अवे, थोड़ा दूर से दिखता है। सो वी डिस्कस्ड ए कनकेव लेंस प्रोड्यूसेस रियल एंड इन्वर्टेड इमेज and a convex lens produces real and inverted image and a concave lens produces virtual and erect image। अगर आप साइंस सेंटर नियर बाय साइंस सेंटर जाएंगे तो आपको उसमें बहुत तरीका से मिरर लेंस दिखेगा और आपका स्कूल में भी टीचर आपको दिखा सकते हैं अगर लैब में है तो। इसमें डायग्रामेटिकली दिखा गया है। इन दिस पिक्चर आई हैव डिस्कस्ड यू रिगार्डिंग योर हाउ द इमेज फॉर्म, कैसा टाइप का इमेज फॉर्मेशन होता है। देखिए इसमें एक छोटा सा कीड़ा का कॉन्वेक्स लेंस में इसे ऐसे दिख रहा है और आपका कॉन्केव लेंस में ये दिख रहा है। एंड द नेक्स्ट portion is your dispersion, that is dispersion of light. It is a very important phenomena or a very funny and interesting phenomena of the light. All of you know light is constituents of 7 colors। आपको पता है लाइट में 7 कलर के रंग है, जीवन के जैसे रंग है लाइट का भी ऐसे रंग है भाई, 7 कलर का रंग है। द फेनोमेना ऑफ स्प्लिटिंग व्हाइट लाइट इनटू 7 कलर, 7 कलर में डिवाइड हो जाना। अगर आप प्रिज्म का सामने अगर कुछ लाइट रे पास कर देंगे तो वो 7 कलर का स्प्लिट हो जाएगा। आप देख सकते हैं रेनबो भी देख सकते हैं, वेरी इंटरेस्टिंग फेनोमेना दैट कंसिस्ट ऑफ 7 कलर्स। and you might have seen if you take a CD, that means your compact disc, then if you show it in your sun ray, अगर आप sun ray की तरफ सामने दिखाएंगे then it will split 7 colors, very interesting very under and interesting phenomena you can also put it in your home। that means CD जो आपका DVD जो बोलते हैं, DVD लेकर के आप सूरज के सामने दिखाएंगे तो इसमें 7 कलर निकल जाएगा, बहुत इंटरेस्टिंग दिखेगा, आपको लेकर देख सकते हैं। उसी चीज को बोलते हैं डिस्पर्सन। The phenomena of splitting of 7 colors white light consists of 7 different colors, that is known as your dispersion। so dispersion को लेकर के dispersion is based upon the phenomena of that is it can be utilized, you can also see dispersion in case of rainbow में देख सकते हैं आप इंद्रधनुष जिसको भी बोलते हैं, और आपका रेन ड्रॉप में भी आप देख सकते हैं। और आप वेरी आसान तरीका कम्पैक्ट डिस्क सीडी, आपका घर में जो डीवीडी रहता है पुराना डीवीडी ले जाइए, उसको सूरज के सामने दिखाए, बहुत आसान से दिखेगा। नेक्स्ट देखेंगे हम, इधर हमने आपको दिखाया गया है एक प्रिज्म लिया गया है, व्हाइट कलर इसमें अंदर छोड़ा गया है, छोड़ने के बाद दिखता है देन यू कैन एबल टू सी दैट it will consist of 7 colors, that is violet, indigo, blue, green, yellow, orange, that is your VIB GYOR 7 colors। so this is all about your chapter। if you have not subscribed to our channel, please subscribe our channel by pressing the bell icon। थोड़ा सा नीचे घंटी दबा दीजिए ताकि आपको हम थोड़ा सा मदद कर सकते हैं, इसीलिए टाइम लगता है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए और सब वीडियो देखिए। अगर कुछ सजेशन देना चाहते हैं, कमेंट देना चाहें, नीचे जरूर दीजिए। प्लीज़ गिव
टेक केयर, बाय बाय, एंड gain knowledge and helps others to gain knowledge. So all of you take care, bye bye, till then फिर मिलेंगे अगले सेशन का साथ, अगला नया चीज़ का साथ, आपका साथ। बहुत इंटरेस्टिंग साइंस को मैं बहुत आसान तरीक़ा से आपकी तरफ समझाऊंगा, आपका तरफ पहुंचाऊंगा। आप समझिए, दूसरा को समझाइए और ज्ञान को बढ़ाते चलिए। जय जगन्नाथ एंड मे गॉड ब्लेस यू।